Hi everyone, this is Lieutenant Commander Rohit Lohani, and you guys are listening to me on Taking It Slow. This is my story. If you like it, please like and subscribe, share with each and every person so that they are aware how it is to be in Indian Navy. It's another Sunday. That means it's another episode of Taking It Slow. और विशु क्या हाल चाल? Yaar, I am very excited. हम लोगों ने we went ahead about 3 weeks ago or 2 weeks ago कि हम एक mini series करेंगे Indian Armed Forces के ऊपर. Yeah. And today is the concluding episode of that series. Trilogy का final chapter आ जा रहा है. This is like Batman 3 और जो कुछ भी. And हमारा मस्त interaction हुआ गरिमा के साथ, फिर मनीष सर के साथ. Yeah. इतने inspiring interactions हुए. And today we have another guest with us. Yeah, so I'm there are excited. very few submariners in the Indian Yes. Armed Forces, and we are very fortunate to have Lieutenant Commander Rohit Lohani with us today, who will share his experiences of being a submariner. यार मतलब हाँ. being inside a submarine for 40 days with 40 people, and he has a very inspiring story, and हाँ, we hope मतलब जो हम कभी live कर ही नहीं सकते थे, like if कर ही it नहीं wasn't सकते, for yeah. this podcast, like Yeah. we wouldn't have any idea कि होती क्या है उनकी life. Yeah. तो बहुत I'm excited यार for today's podcast and we'll be done with this series. और बहुत ही So सही. without any further ado, let's dive right in. Vishu, we have a very special guest with us today. We have Lieutenant Commander Rohit Lohani, who has served in the Indian Navy for 10 long years. Very proud and very humble to be in your presence, Rohit. How are you? Thank you so much, Vijendra and Vivek. I am absolutely fine, and I'm very happy you guys called me for this session, and I'm really excited to be here with you. क्या चल रहा है आजकल? क्या कर रहे हो? Normally, I was first doing job in a shipping company, but then I realized कि life में थोड़ा adventure कम हो रहा है, and I was from a naval background. So अभी थोड़ा I'm doing some adventurous work. I am into stock markets. I am a full-time trader, and I am also काफी an adventure investor advisor. तो stock market तो daily adventure है, बहुत मजा आता है. बहुत सही. Rohit, you spent 10 years of your life in the Indian Armed Forces representing the Indian Navy. What was it like, man? Yes. How was it on an overall level? Do you miss those times? What was the time like? So basically 10 years in Navy was really wonderful. I must say, Navy ka life is totally different from what we experience outside. And not just because you are in armed forces, but overall the culture inside the naval society environment where people live their day-to-day life also is very different from what it is outside in CV street. Because यहाँ पे आपको हर चीज के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, बट वहाँ पे कोई स्ट्रगल नहीं है. सब कुछ आपके पास ही है, सब कुछ अंदर ही है, आपके दोस्त भी सब अंदर ही हैं, सब चीजें आपको. तो it is very great time. It was very great time and I really enjoyed my time in Navy. 10 years कैसे निकल गए पता ही नहीं चला. और स्पेसिफिकली मेरा जो स्टार्टिंग था नेवी में एंट्री करने का, वो इतना ड्रामेटिक था कि उसके बाद मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम दैट आई एम इन अ गुड स्टेज वेयर आई वांटेड टू बी. क्या ड्रामेटिक था बिगनिंग में यार? सो ड्रामेटिक ऐसा था बिगनिंग में बिकॉज सिंस चाइल्डहुड मुझे शौक था पायलट बनने का. आई वांटेड टू बिकम अ पायलट एंड मुझे सारे जितने रिलेटिव्स थे दे आल्सो यूज्ड टू कॉल मी पायलट. मेरा नाम ही पायलट पड़ गया था फैमिली में. बहुत सही. So everyone used to call me pilot and मैंने सोच लिया था बनना तो पायलट ही है लाइफ में, और कुछ तो लक्ष्य नहीं है जिंदगी में. So then I 12th के बाद I gave exam of NDA, तो रिटन क्लियर हुआ. SSB में स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्शन, तो पहला झटका वहां लगा. नाइस. कैसा भी होता है कि सिलेक्शन नहीं होता है. तो फिर nice. और मेरा लास्ट अटेम्प्ट में रिटन क्लियर हुआ था, तो मेरे पास NDA के दूसरी अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी. Then I thought चलो ग्रेजुएशन करेंगे और उसके बाद भी I will try again. तो ग्रेजुएशन करने के बाद I tried for CDS, that is Combined Defense Services exam. And वो एग्जाम दिया, वहां पे भी I was not selected. Basically SSB में फाइनल में जाके रिजेक्शन हो गया. Again it was एयरफोर्स एंट्री. सही. तो उसके बाद मैंने एयरफोर्स डायरेक्ट एंट्री एविएशन अप्लाई किया, तो वहां भी मैं गया, तो वहां मेरा फर्स्ट राउंड में रिजेक्शन हो गया. अभी पहले तो मैं 2 बार फाइनल तक गया था, अभी फर्स्ट राउंड में रिजेक्शन हो गया. मैंने कहा यहाँ पे भी बात नहीं बन रही. अभी देन आई थॉट कि चलो यार कोस्ट गार्ड में ट्राई करते हैं एविएशन. तो कोस्ट गार्ड एविएशन का एग्जाम दिया, वहां भी मेरा रिजेक्शन हो गया. भाई साहब तो टोटल 5 रिजेक्शन के बाद आई रियलाइज कि भाई दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी. ये तो नहीं हो पाएगा. आई थिंक आई विल ट्राई आफ्टर सम टाइम. अगर थोड़ा पैसा हुआ तो कमर्शियल फ्लाइंग ट्राई करेंगे. फिर भी जल्दी रियलाइज हो गया आई वुड से. हाँ, तो उसके बाद मेरे को एक मेरा कॉल लेटर आया जो मैंने एक्चुअली आई जॉइंड कॉल सेंटर. तो मैंने उसके बाद अभी छोड़ो यार, ग्रेजुएशन हो गया, अभी कॉल सेंटर का एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा लग रहा है,
तो थोड़ा इसको ज्वाइन करते हैं। तभी वो कन्वर्जेंस वाली वो हाँ, 5 उस समय वो कही थी क्या 2007 चल रहा था, तो तब रिसेशन से जस्ट थोड़ा पहले का टाइम था। उसी टाइम And पे उस चेतन समय भगत का वो भी आया था, वन नाइट एट द कॉल सेंटर, अरे सब अमेजिंग एकदम था, वो पीक पे था। एनवायरनमेंट ही अमेजिंग था। रात को 11 से सुबह 7 बजे तक काम करना है, सुबह ब्रेकफास्ट करके घर पहुंच जाओ, फिर पेरेंट्स को देखना नहीं है, तो बहुत ही मजा आता था। पूरी दिन भर सोते थे, फिर रात को अपना काम पे निकल जाते थे, तो बहुत मजा आता था, बहुत ही सही। अल्टीमेट था। पैसे भी मिलने शुरू हो गए थे, हाँ, तो और फिर उस हमने टाइम पे पीछे तो मुड़ के पैसे देखा भी ही इतनी नहीं। बड़ी चीज लगती है यार, क्या 10,000 एब्सोल्युटली। रुपए मिल रहे। हाँ, तो मेरे को उस समय 12,000 रुपीज मिलता था, मैं बहुत खुश था उस सही। 12,000। बहुत मैंने सही, कहा बहुत अमेजिंग। सही। एंड देन मेरा कॉल लेटर आया नेवी का, विच वॉज अ सरफेस एंट्री नॉट एविएशन। तो मैंने वो कॉल लेटर लिया और उसको फाड़ के मैंने डस्टबिन में फेंक दिया। मैंने कहा अभी तो भाई जाना ही नहीं है घर। अभी तो नाइस। लाइफ नेक्स्ट मस्त डे चल मेरे रही है। फादर सुबह डस्टबिन में कुछ फेंक रहे होंगे, तो उन्होंने देखा कुछ पेपर सा पड़ा हुआ और उसमें कुछ गवर्नमेंट का स्टैम्प सब लगा हुआ। तो उन्होंने उठाया उसको, बोले ये तुमने ये क्या फेंका है इसमें? मैंने कहा वो मेरा एसएसबी का है, छोड़ो, 5 बार तो नहीं हुआ, अभी क्या होगा मेरा। नहीं नहीं यार, गवर्नमेंट जॉब है, तुम यहाँ पे कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हो, अभी लोगों को क्या बताऊंगा कि मेरा बेटा कॉल सेंटर में काम करता है। बोला तुम नहीं, तुम जाओ ज्वाइन करो, अभी तुम जाओ पर एग्जाम देके आ जाओ, बोले फेल होके आ जाओ लेकिन देके आ जाओ। एंड दैट वाज द टाइम आई वाज सिलेक्टेड। ब्रिलियंट, सही यार, सही। ब्रिलियंट। यार तो मैंने मुझे कहा पता पापा है। मेरे को तो लेकिन एविएशन में जाना था, आपने तो सरफेस में सिलेक्शन करवा दिया हमारा। तो बोला नहीं ठीक है, अभी तुम ज्वाइन कर लो कैसे भी करके। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, ज्वाइन कर लेता हूँ। तो मैंने आई ज्वाइन नेवी ऑन सरफेस, बेसिकली एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ सरफेस नेवी। एंड देन फ्रॉम देयर अगेन आई अप्लाइड फॉर एविएशन। जितने भी एविएशन के निकलते थे मैं भर देता था कि एविएशन में जाना है। तो एविएशन मेरा सही यार। टोटल हमेशा रिजेक्शन होता रहा। देन आई रियलाइज एक सबमरीन का एंट्री निकला, सबमरीन एंट्री। मैंने कहा हवा में हो नहीं रहा है, सरफेस में मुझे रहना नहीं है, लेट्स गो पानी के नीचे। नाइस। क्राफ्ट चलाना है। हाँ, तो हाँ मतलब कुछ चलाना है बस, अपने आप को थोड़ा कॉकपिट टाइप फीलिंग आना चाहिए। तो आई अप्लाइड फॉर सबमरीन एंड उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने कहा हम बेसिकली पानी के नीचे के लिए बने, इसी के लिए बने हो बस। हाँ। हाँ। तो देन उसमें सिलेक्शन हुआ एंड आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज कि व्हाटएवर लाइफ आई हैड इन सबमरीन आर्म, इट वाज अमेजिंग because it's just like, if you compare it is like infantry of army. एक तो camaraderie is there, a lot of camaraderie is there between people. It's a small group, it's a silent service, and people are really connected to each other. So it was wonderful experience, and luckily I was on a good boat which was German. हमारे पास 2 boats होती है, German होती है, Russian होती है. So I was on a German boat, and German boat में basically जो construction है वो थोड़ा अच्छा है Russian से. Basically Russians ने पहले इक्विपमेंट लगा दिए, फिर ह्यूमन बीइंग के बारे में सोचा, भाई इनको भी जगह देनी है। जर्मन से स्लाइटली डिफरेंट, उन्होंने पहले लोगों के बारे में सोचा, फिर इक्विपमेंट्स लगाए। तो आई वाज ऑन द राइट प्लेटफॉर्म एंड देन क्या फर्क क्या रहता है, मतलब बैठने उठने के लिए या लाइफ ऑन बोर्ड जर्मन सबमरीन स्लाइटली बेटर बिकॉज एक तो अगर रशियन सबमरीन में देयर आर टनल्स, एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट जाने के लिए टनल्स है, तो आपको पूरा टनल्स के अंदर से जाना पड़ेगा। एंड मशीनरी सब जगह पे है, इवन वेयर यू आर स्लीपिंग आल्सो देयर लॉट ऑफ मशीनरी इज देयर, बट where accommodation space of a German submarine is totally different. Accommodation space is accommodation space. People are living there. We just have a weapons compartment there, but normally वहाँ पे environment वैसे ही रहता है जैसे लोग जहाँ पे रहते हैं वैसा. Okay. Accommodation space type. And बाकी it's a door to door within the compartment. Doors are there. So normal entry is good. Construction is also very good. One side आपका पूरा electrical equipment है, दूसरी side पूरी machinery है. So construction समझना भी बहुत आसान था. And submarine arm is a specialized branch, so you have to understand everything. I was from executive operations branch, but we had to understand everything. मतलब आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपका एग्जाम होगा, अगर आप क्लियर करोगे तभी आप सबमरीनर बनोगे, तभी आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे बेसिकली। सही यार रोहित, मेरा बहुत लेमैन वाला क्वेश्चन है यार, मतलब जो मेरे को क्यूरियोसिटी हो रही है कि एक बार तुम मतलब सबमरीन, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट, व्हाट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम तुम एक सबमरीन में रह सकते हो कि भाई उसके बाद तुम्हें बाहर आना है? एब्सोल्युटली। वैसे तो सेलिंग में जाओ तो एक दिन भी नहीं रह सकते, बट एनवायरनमेंट इज वेरी टफ। जो सेलिंग क्रू था हमारी सबमरीन का, दैट वाज 54 एट सी, एंड 54 के क्रू में जो ऑफिसर्स होते हैं वो दैट इज 18, और 18 में कमांडिंग ऑफिसर एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बंक इज 6। तो बाकी ऑफिसर्स को सिर्फ 5 बंक मिलते हैं रहने के लिए। 5 बंक मतलब 5 बेड। बिटवीन 15 ऑफिसर इट इज ओनली 5 बेड। So you cannot sleep continuously. आपको काम करना है, whenever your turn is there, you have to go and sleep. So this is just one scenario where आपको sleeping के लिए थोड़ा सा issue है. Again, wardroom is very small where you eat. It's a very small space, congested space. So एक बार में 2-3 लोग ही खाना खा सकते हैं. So when they will eat, then next person will eat. So it is very environment is very different. You are underwater continuously, so it's a hostile environment. Again, you are against the nature, like it's aviation. You're not supposed to be there. Yeah. Yes, so it's very small or minor mistake, can go deeply wrong, and you can have a very bad emergency, which normally drills होते हैं, सब चीजें सिखाई जाती हैं, but real scenario को
सामने से देखना और उसको फेस करना इज टोटली डिफरेंट. So it was a good life, but overall it was a challenging time because आपको सारी चीजों को साथ में लेके चलना होता है. You have to work also simultaneously. You have to be calm also. And when sailing is long, I have done maximum sailing of around 40-45 days. So 45 days you are there is no contact with in the family. A submarine. Just to clarify. In a submarine, yeah. So 40-45 days no contact with the family. Otherwise, surface ships they can contact their family. By radio, yeah. Right. Yeah, but we cannot do anything. So no contact with family, no TV, nothing. So basically, and जो movie होती है वो भी कुछ time बाद खत्म हो जाती है. So you have to watch everything on repetition. Otherwise, environment totally different. And every time it is like you are sitting in a room. You cannot. And day और night का थोड़े time में समझना बंद हो जाता है. आपको sometimes समझ में नहीं आता कि day है कि night है. Watch देख के. That's why we use 24 hours like 1800, 1900 ऐसे ताकि समझ में आए कि हाँ अभी रात हो रही है बाहर. नहीं तो समझ में आना बंद हो जाता है यार. और ऐसे बॉडी पे क्या इफेक्ट्स होते हैं, मतलब जैसे व्हेन यू कम बैक टू सरफेस थोड़ा प्रेशर वगैरह और चलने वालने में भी प्रॉब्लम होती है कि कुछ दिनों तक? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता. ओके होता है. एक्सेप्ट वन थिंग व्हिच आई फेस्ड इज थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है अंदर. एंड व्हेन यू कम आफ्टर अ लॉन्ग ड्यूरेशन बेसिकली यू रियलाइज कि काफी कलरफुल दुनिया है जो नॉर्मली हमको दिखाई नहीं देती है. You start appreciating it more. जब 20 days सब कुछ मतलब बाहर आपको अच्छा लगता है, लोग देख के इतना अच्छा लगता है कि यार बहुत अच्छा. नॉर्मली भीड़ देख के अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब हम सबमरीन से सेलिंग से वापस आते हैं वाह यार क्या कोलाबा. हर स्टेशन वाज कोलाबा. तो अल्टीमेट लगता था कि कैसी जगह आ गए हम. सही है यार. मेरे को तो मतलब सबमरीन वाला वो एटमॉस्फेयर इतना अजीब सा लगता है कि यार एक स्क्रू में भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मतलब ये कितना डेंजरस है. बहुत ही मतलब सोच के एवरीथिंग इज वेरी डेंजरस. एंड इतने प्रेशराइज्ड स्क्रूज भी प्रेशराइज होते हैं बहुत ज्यादा. तो अगर वो निकलेगा भी तो बहुत प्रेशर से निकलेगा. तो वी हैव सीन सम एक्सीडेंट्स और लोगों के हुए हैं. मेरा खुद का एक्सीडेंट हुआ है. जैसे बताओ ना उसके बारे में बताओ. तो बेसिकली सबमरीन इज व्हेन इट इज ऑन सरफेस it is its shape is like you can say you can compare with an egg. So जब रोलिंग पिचिंग होता है तो बहुत ज्यादा रोलिंग पिचिंग होता है. अराउंड 40-45 डिग्रीज रोलिंग पिचिंग होता है रोलिंग पिचिंग मतलब. हां so I was coming घूमना बस. It's rolling is basically movement of submarine towards left or right and pitching is up and down. Okay. So left and right movement बहुत ज्यादा होता है सबमरीन. अराउंड 45 डिग्रीज एंगल पे पूरा सबमरीन हो जाता है. And everything is machinery. So सब कुछ सिक्योर करके नॉर्मली रखा होता है कि एट सी प्रॉब्लम ना है. बिकॉज वंस इट डाइव्स तो 50 मीटर 55 मीटर पे पानी स्टेबल होता है. तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि यू आर आप सी में हो. यू विल नॉट इवन रियलाइज दैट यू आर एट सी. सो मैं ब्रिज से वॉच करके नीचे वापस आ रहा था एंड इट वाज हेवी रोलिंग. सो हमारा जो कुक था वो गैली में टी बना रहा था. एंड देन सडनली आई हर्ड अ बिग साउंड. तो मेरे को ऐसा लगा कहीं उसके ऊपर टी तो नहीं गिर गया. तो आई वेंट इनसाइड गैली जो कि किचन होता है. पूछने के लिए उससे. तो दूसरी साइड पे रोल आ गया तब तक. एंड जो किचन का डोर था वो मेरी फिंगर पे आके लग गया. तो मेरी फिंगर चॉप हो गई पूरी. एंड देन मेरे को समझ में नहीं आया. आफ्टर सम टाइम मैं ऐसे देख रहा हूँ उसको, वो निकल रहा है, उसमें ब्लड भी निकल रहा है. तो मैं देख रहा हूँ उसको. देन समबडी एल्स शाउटेड. जो मुझे शाउट करना चाहिए था वो कोई दूसरा चिल्लाया. तो देन आई थॉट कि शॉक में दर्द नहीं होता. पहली चीज अच्छी चीज है, शॉक में दर्द नहीं होता. सेकंड थिंग की देन ही शाउटेड. देन डॉक्टर आया एंड डॉक्टर ने उसको थोड़ा क्लिपिंग वगैरह लगाया. फिर मेरे को उन्होंने डिसम्बार्क किया एक बोट में. बट असली स्टोरी ये नहीं है. इसमें जो मजेदार स्टोरी है वो ये है कि मेरी वाइफ तक जो न्यूज पहुंची. माय कमांडिंग ऑफिसर गिव अ कॉल ऑन नॉर्मल ट्रांसमीटर पे कॉल किया मेरी वाइफ को. एंड बाय द टाइम ही सेड समथिंग हैपेंड टू हिज हैंड. वो फोन कट ऑफ हो गया. तो उसको समझ नहीं आया कि हैंड बोल दिया तो हैंड गया तो यहाँ गया क्या गया हो गया. ही वाज ऑल पैनिक. बाय द टाइम शी रीच्ड हॉस्पिटल तो वहां पे हॉस्पिटल में उसने पूछा कि मेरे हस्बैंड आए, उनके हैंड में कुछ हो गया. तो वहां का जो असिस्टेंट था उसने बोला अरे वो तो घूम रहे हैं अभी आराम से. वो तो उंगली में लगी है. वो तो आराम से घूम रहे हैं, उनको तो कुछ नहीं हुआ है. तो वो उंगली पे क्लिप लगा हुआ था. देन उस पे थोड़े दिनों के लिए भगवान कृष्ण की तरह से रखना पड़ा. वो पिन लगता है उसमें. So that was good incident. उंगली completely समझ में आ गया कि शॉक में दर्द नहीं होता है. उंगली completely recovered now. But there's still pain, but you can still उंगली कर सकते हो. finger around thing. हाँ उंगली कर सकते हैं basically. Fuck, okay. इतना कैजुअली हंसते हंसते बताया हाँ मेरी उंगली कट गई सही था किचन के दरवाजे में आ गई. ये तो नहीं वो कैजुअली इसलिए see once you realize कि उस मोमेंट में भी there was no panic. There was no panic at all. I was not worried.
I know कि there are people who can take care. हमारे hospitals अच्छे हैं. We have good thing, and our commanding officer was very good. रोहित, आप कामनेस की बात कर रहे थे कि पैनिक स्टेट बिल्कुल नहीं होता. सो इज दैट अ पार्ट ऑफ योर ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग एज वेल कि यू आर ट्रेन्ड दैट वे, यू डोंट हैव टू लूज योर कूल एट एनी जंक्चर ऑफ टाइम? Absolutely. So see, we say surface training also, but it is submarine is like aviation, flying. So flying was very isolated cubicle. Yeah. So the training is very harsh. It's very, very harsh. Okay. And you always prepare for scenarios which are very grease scenario, very high emergency. You always prepare for that. So normally वो इतना preparation करके ऐसा हो जाता है कि when this thing comes तो आपको panic नहीं होता बिल्कुल भी. That is the amount of preparation you continuously do while you are. Give some examples of the level type of preparation that you do, if you can. See, we keep on doing drills. So जैसे major thing submarine में क्या हो सकता है आपका? It can happen, fire. Fire is the most important thing, which is one incident which can happen and destroy the entire submarine because you are underwater. Which is so ironic, yeah. There is no underwater air. fire, yeah. हाँ, so air है नहीं, बाहर अंदर ही जो धुआं भी रहेगा सब अंदर ही रहेगा. सब अंदर रहेगा. आपको उसको कैसे कंट्रोल करना है? So that is the one thing, and we keep on practicing कि यहाँ पे फायर लगा तो कैसे क्या एक्शन करना है, वहां पे फायर लगा तो, एंड जब होता भी है हुआ भी, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है. मेरे टाइम पे बहुत बार फायर हुआ, but we are able to control it because we are ready for that situation. तो ये प्रिपरेशन कंटिन्यूअसली चलता रहता है. इवन वी कीप ऑन डूइंग फायरिंग प्रैक्टिस हमारा चलता रहता है. तो जब नॉर्मल फायरिंग होता है तो देन यू फील कि हाँ इतना प्रैक्टिस तो किया हुआ, इट इज जस्ट अ नॉर्मल ड्रिल, रूटीन है हमारे लिए. इट्स अ रूटीन जॉब फॉर अस. तो इतना फील नहीं, मतलब आपको किसी भी सिचुएशन को जब आप फेस करते हो रियली में, तो यू डोंट फील एट ऑल कि ये रियल सिचुएशन नहीं है, बिकॉज यू ऑलवेज सिमुलेट रियल सिचुएशन टू बी फर्म ऑन दैट. फायरिंग की बात कर रहे थे आप. फायरिंग करना पड़ता है तो एक्चुअल में जब करना पड़े तब भी ड्रिल जैसा लगता है. एक्चुअली कभी करना पड़ा वैसे? ऐसे कुछ इंस्टेंसेस आए व्हेन यू हैव बीन इन अ लाइव सिचुएशन? वो गन फायरिंग तो नहीं, आई एम बस टॉकिंग अबाउट द टॉर्पेडो फायरिंग. नहीं, मैं उसी की बात कर रहा हूं. हमको अच्छा टॉर्पेडो फायरिंग हो टॉकिंग अबाउट. वैसे गन फायरिंग तो अजीब हो जाएगा ना, वैसे नहीं करना पड़ा. गन फायरिंग कर रहे हो ओशन में अंदर तुम. We did practice firing a lot, but live firing हमने टॉर्पेडो का लाइव मतलब विद वॉरहेड जो जाके ब्लास्ट हो जाएगा वो नहीं किया. जो ब्लास्ट नहीं होता भी, यहाँ बैटरी टॉर्पेडोज भी होते हैं, जो प्रैक्टिस टॉर्पेडोज होते हैं. तो उनको हम फायर करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, शिप्स पे फायर करते रहते हैं. और इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म है सबमरीन, अकेला ट्रैवल करता है, किसी के साथ उसको ट्रैवल नहीं करना है. जब जाके शिप्स के साथ मिले, 1-2 शिप्स को उड़ाया और उसके बाद अपना आराम से फिर दोबारा घूमने निकल लिए. बहुत ही कैजुअल बोल रहे हो यार ये सब. आपने जाके 1-2 शिप्स को उड़ाया. ये बहुत सही. हाँ, शिप्स तो हमारा काम ही यही है, शिप्स को उड़ाना. एक नेवी ऑफिसर की लाइफ में, मतलब आई नो कि डेजिग्नेशंस के साथ डिफर करता होगा, बट इन 1 ईयर फॉर हाउ लॉन्ग आर यू ऑन द ओशन एंड फॉर हाउ लॉन्ग आर यू ऑन लैंड? क्योंकि ऐसे लगता है हमें तो जैसे एज अ लेमैन के नेवी ऑफिसर है तो हमेशा ओशन पे ही रहते हैं. What the reality is totally different. Few people are not comfortable at all at sea because sea में your body reacts in a very different manner. And सबका अपना body type होता है. Some people they feel very उनको काफी vomit situation होती है. The entire sailing they will not be well. They will never be well. आपको कभी दिखेगा ही नहीं कि वो सही है. Because their body is that type. कितना भी sailing करा लो, they will feel bad only. But my body was totally different, opposite side. मेरे को एक्ट की बहुत कंफर्टेबल लगता था. लैंड पे आके मैं वॉमिट करने लग जाता था. लैंड पे आके वॉमिट करने लगा. एंड एक्चुअली आई यूज्ड टू फील हंग्री. मेरे को बहुत भूख लगती थी और मतलब आई वाज फुली टायर्ड. तो कई बार ऐसा होता था कि किसी दूसरे की ड्यूटी भी कर जानी पड़ती थी, बिकॉज़ अरे ये तो कंफर्टेबल है, इसको ड्यूटी करवा दो. सबमरीन वंस यू डाइव, it's all the same. Land and submarine is same, just except you are in an environment where you don't know what is day, what is night, and there is nothing to watch outside. As if people funny question भी पूछते हैं कि सबमरीन से बाहर दिखता है कि आप मछलियां देख सकते हो क्या? तो वैसा कुछ होता नहीं है. नो मछली और ऐसे विंडोज नहीं लगाई हुई क्या एक दो जैसे ऊपर स्पेस स्टेशन में लगी यार, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी लगी हुई है यार विंडोज, सबमरीन में भी लगाई हुई है. मेरे को एक्चुअली मैं अगर मेरे को टाइम मिलता नेवी में थोड़ा बहुत तो मैं शायद विंडो लगा लेता, बिकॉज़ वो बहुत अच्छा रहता, बाहर फिश देखने को तो मिलता. वो लगा नहीं हुआ है. सबमरीन बाय डिफॉल्ट इज अ स्टेल्थ ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म. या ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म. सो अभी अगर हम विजिबल व्हीकल्स की बात करें, जैसे इन्फेंट्री की बात की आपने आर्मी में, एयरफोर्स में हम अगर अपने जेट्स की बात करते हैं, सो अगर एक दूसरे का इंटरनेशनल एयर स्पेस क्रॉस हो गया या लैंड हमने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर लिया तो बहुत आतंक सा मच जाता है, बहुत तबाही से मच जाती है. बट सिंस सबमरीन इज अ स्टेल्थ व्हीकल, it would be much more easier, should I say, to step into international waters without people detecting you, या सोनार वगैरह के साथ भी
आई एम अज्यूमिंग सब लोग टैग रखते होंगे, बट इतनी तबाही नहीं मचती है, मतलब ट्रैवल करते ही हो गए आप इंटरनेशनल यार ओशन के नीचे तो बादल भी नहीं होते हैं जो रेडार को रोक ले। करेक्ट, कोई नहीं होता वहां पे, कोई नहीं होता, देखने के लिए भी कोई नहीं होता कि सबमरीन आई है कि नहीं आई है, वो भी देखने के लिए कोई नहीं होता. देयर इज नो वन टू वॉच यू. बट यस, इट इज स्लाइटली इजियर because it is very difficult to detect a submarine. And normally हमारा जो अरेबियन सी है और बे ऑफ बंगाल है, जो वहाँ पे वाटर, it is all on sound profile of the water, and it is very difficult to detect submarines in these environments. So it is very good environment for submarines to be in, and they can travel as close as possible to the enemy coast, which is very difficult for ships, because ships can be seen, you know, they can be caught on radar. But submarines cannot be caught on radar, and also that's why they can travel till, you know, till the coastline. They can travel of enemy coastline, and yes, these platforms operate near coastline. I cannot tell you much about this because it's a secret mission. But yes, these platforms travel near, very near to the coast, to enemy coast, and they are offensive platforms. So they are the first line of defense. If any war will happen, these platforms will only, you know, perform the first task, because that's why they have been there in that area. Just like infantry, LOC में जो जवान है वो पहले सबसे पहले गोली चलाएगा, because उसको सबसे पहले उसी को आते हुए दुश्मन दिखाई दे रहा है. So have you been in any such circumstances where you have been very close to the opposition coast? Yes, absolutely. I have been. Every submariner goes to coastline of enemy, and yes, I have seen also coastline of enemy. But it's another information I cannot share. But the thing is, yes, yeah, I have been to near enemy coastline, and yes, this is the platform which is meant for, you know, to do all these things. So उस टाइम पे एकदम काफी ज्यादा मेंटल प्रेशर भी रहता होगा ना, so you are yeah, it's a very mental pressure के साथ साथ it is because you have to be active at a time where you know, जहाँ पे normally इंसान active नहीं रहता है. So that is the time you have to be active. So you have to totally switch your life cycle. आपके लिए डे नाइट हो जाता है, नाइट आपके लिए डे हो जाता है, and then you have to be active at all. And हमारे जो सबमरीन है, they are conventional submarines, they are not nuclear submarines. So they have to come up, do charging of their batteries. So उसके ऊपर भी आना है उनको. So they have to maintain the stealth also. किस टाइम पे ऊपर आना है, तब तक कोई होना नहीं चाहिए, कैसे ऊपर आना, वो सारे जो precautions हैं, और highly hostile environment है, it's an enemy coastline, वहाँ पे आप काम कर रहे हो. So you have to, you know, be very careful in your operation. So ये सब scenarios रहते हैं, and I'm lucky that I have operated in these environments. It gives you real confidence that yes, you have operated in such kind of scenarios. तो बहुत अच्छा लगता है, और अभी तो बहुत ही अच्छा लगता है कि ऐसा भी कर दिया है हमने लाइफ में. सही यार. यार रोहित, मेरे को ना ऐसे एक नेवी पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए था, थोड़ा सा सीरियस क्वेश्चन हो जाए शायद. जैसे चाइना का हम देखते हैं, लाइक कि नेवी इज गेटिंग वेरी स्ट्रांग, और वो ऐसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है इंडिया के चारों तरफ. तो हाउ सीरियस इज दैट चाइना वाला थ्रेट के, और मतलब उसमें सबमरीनर्स का कितना रोल होता है? तो सभी को पता चल गया है अभी. देखो कितने चाइनीज आर फार अपार्ट. तो उनको तो हम कभी भी किसी चीज के रोक नहीं सकते. उनको जो करना होता है वो करते हैं. हमारे पास इंडियन ओशन में जब जो इंसान लैंड में इतनी तबाही मचा सकता है, वो कहीं पे भी मचा सकता है. बट यस, ठीक है, हम अपने हिसाब से प्रिपेयर है. हमारी नेवी बहुत ही ज्यादा हाईली कैपेबल है, एंड वी आर रेडी फॉर एवरी सिनेरियो. हमारा जो ऑपरेशन है, आवर नेवी इज ब्लू वाटर नेवी. इट operates away from the coastline. It's not like our neighboring country who really operates nearby their coastline. So we go to high seas, operate with different navies. We have good exposure. अगर कोई enemy हमको टक्कर देने की कोशिश करेगा from sea, तो we can give, you know, good reply. So if you have to rate our naval strength, it is at par with the most developed countries or the top? Yes, we are 5th largest navy in the world, and हमारा US, China, Russia, France के बाद हमारा नंबर है. These are big countries. So उसके बाद 5th largest navy है हमारी. So definitely हमारी navy बहुत अच्छे काम कर रही है. नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, and all these platforms are very good. Nuclear submarines आ रही हैं, and these, if we get, you know, ahead in all these things, हमारी नेवी का ऑपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा. Maybe we can, you know, jump to some second, third position. आपको कोई उनके साथ एक्सपीरियंस हुआ है क्या, जो एक पायरेसी लाइन होती है सोमालिया वाली साइड, a lot of oil? ये तो अमेजिंग है. this Maersk Alabama के टाइम पे I was in Somalia. Maersk Alabama, Captain Phillips. हाँ. So I was in Somalia at that time. I was on ship. सही. So हम शिप के लिए एंटी पायरेसी पेट्रोल के लिए गए थे, and I was in CTF 151, that is Combined Task Force 151. So 151 was
उसका काम था पेट्रोलिंग करना. एक ग्रुप ऑफ शिप्स को वी यूज टू टेक फ्रॉम गल्फ ऑफ एडन में होता है ये पेट्रोल. तो वी हैव 2 पॉइंट अल्फा एंड ब्रावो. तो आप एक ग्रुप ऑफ शिप्स को लेके जाते हो, दूसरे पॉइंट तक छोड़ते हो, एंड वहां पे ले जाके आप छोड़ते हो. बट दीज शिप्स आर लाइक मर्स्क एलाबामा, दे आर हाई, द शिप्स हु ऑपरेट एट अ वेरी हाई स्पीड. वो 32 नॉट्स या 35 नॉट्स करते हैं. हमारे इंडियन शिप्स दे ट्रैवल विद स्पीड ऑफ ईच एंड एवरी शिप हु इज प्रेजेंट इन दैट एरिया. सो उसका एक नॉर्मल 12 नॉट का या 16 नॉट का स्पीड रहेगा. सो वी कैन नॉट ऑपरेट विद द शिप हु इज गोइंग एट अ 32 नॉट स्पीड. सो मर्स्क एलाबामा वाला केस हमारे टाइम पे ही हुआ था, एंड वी हर्ड दैट वॉइस, दैट जो उनका सिग्नल था, जो उनकी वॉइसेस थी, वी हर्ड दैट. वो हमारे पास में ही हो रहा था सारा इंसिडेंट. यार एक बार वो मर्स्क एलाबामा वाला केस एक्सप्लेन भी कर दो ना. हाँ, फॉर दोस हु डोंट नो. हुआ क्या था? तो मर्स्क एलाबामा हुआ क्या था? Yeah, so Maersk Alabama was a ship. Maersk का ship था container carrier. Yes. And it was going through Gulf of Aden. Gulf of Aden से आ रहा था. Gulf of Aden में उस समय पे basically piracy बहुत ज्यादा थी. So these Somalian coast में, the people are very poor, and normally what they do, they hijack ships. Yeah. And they take ransom from the company. Right. That we will, leave this ship after you will give us this ransom amount. आप हमें इतना पैसा दोगे तो हम आप इसके शिप को छोड़ देंगे. तो मर्स्क एलाबामा उसी रूट से जा रहा था, एंड सबको पता है कि उस रूट में खतरा है. उस समय पे तो बहुत ही ज्यादा था. 2009 वाज शार्प टाइम जब ये सब सबसे ज्यादा था. तो दैट शिप वाज गोइंग थ्रू दैट एरिया, एंड उनको इंटरसेप्ट किया एक सोमालियन पायरेट बोट ने, एंड देन दे वेंट ऑन द शिप. उस शिप पे चले गए. शिप पे जाने के बाद इनके पास सारे अरेंजमेंट्स रहते हैं उसको हटाने के, बट दे ट्राइड अ लॉट, बट कुछ हुआ नहीं. वो पायरेट जो होते हैं वो अमेजिंग होते हैं, वो कैसे भी चढ़ जाते हैं. बिकॉज हमने भी एक पायरेट इंसिडेंट फेस किया था. तो ये पायरेट बहुत हाई, इनका सब कैलिबर एट ऑपरेटिंग एट सी इज वेरी हाई. सो दे केम इनटू द शिप, एंड देन आफ्टर सम टाइम जब उनको समझ में आया कि उन्होंने रैंसम मांगा, सब कुछ हुआ, कुछ हो नहीं रहा करके, एंड उनके क्रू ने उनको ओवरटेक कर लिया. उनका कुछ क्रू इंजन रूम में छुपा हुआ था, एंड दे केम ऑन बोर्ड, एंड उन्होंने उनके वेपन्स वगैरह ले लिए, छीन लिए. तो उनको वहां से जाने के लिए बोला कि अब आप यहाँ से चले जाओ, बिकॉज आप कुछ नहीं हो सकता. यू आर नॉट, मतलब आप हमारे सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है. हाई ग्राउंड नाउ. Then so when they went, they took captain with them, captain of the ship. Okay. So captain of the ship को साथ में लेके वो चले गए, and then अभी captain of the ship is like ship. He is the ship because he is running the ship. So उन्होंने, उनको शिप तो नहीं मिला तो कैप्टन मिल गया उनको. तो वो कैप्टन को लेकर अपने साथ चलेगा, और उन्होंने अभी उनकी कंपनी को फिर बोला कि अभी हमको फिर पैसा चाहिए. अब कैप्टन ये तभी छूटेगा जब पैसा मिलेगा. फॉर यूएस जब वन मैन इज इम्पोर्टेंट लाइक शिप, उनके लिए वो उसकी वैल्यू बहुत है. सो देन देयर वॉरशिप केम, एंड उसमें उन्होंने अपने मरीन कमांडोज वगैरह बनाए थे. दे इंटरसेप्टेड दैट बोट, एंड वहां पे सारे सोमालियन पायरेट्स को उन्होंने गन पॉइंट पे वो अपना स्नाइपर शूटिंग के साथ मार डाला सबको, एंड देन उन्होंने वापस कैप्टन फिलिप्स को रेस्क्यू किया था वहां से. सो दिस वाज अ वेरी इंसिडेंट व्हिच वाज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ अस, एंड हम सब देख रहे हैं ये सब चल रहा है. वहां पे हाईजैकिंग का आवाज आ गया है अभी, उसके बाद वो हाईजैकर बोल रहे हैं कुछ, एंड तो बहुत ही लाइव सिचुएशन था, बहुत ही, और मैंने ऐसा कोई कुछ देखा नहीं था. आई वाज जस्ट इन नेवी, जस्ट ज्वाइन किया था मैंने. तो मेरे को, और मैं आई वाज ऑन अ ट्रेनिंग बिलेट ऑन शिप, तो मेरा ट्रेनिंग चल रहा था उस समय. हमने ऐसे टाइम पे ऐसा सिचुएशन देखा तो आई वाज अमेज्ड, बहुत मजा आया. और कुछ लाइव सिचुएशंस देखी है मतलब आपके टेन्योर में? एक और लाइव सिचुएशन देखा, वी कॉट पायरेट. हमने खुद ही पायरेट पकड़ लिए थे, एंड देन ड्यू टू सम प्रॉब्लम हम उन पायरेट्स को तो अरेस्ट नहीं कर पाए, बट हमने उन पायरेट्स को एट सी छोड़ दिया. उनका सारी चीजें ले ली, वेपन्स वगैरह ले. सबसे अच्छी चीज जो हमने ली, हमने बहुत बड़ी फिश ली उनसे, और वो काफी बड़ी फिश थी, और शाम को हमारा बारबेक्यू हुआ, और उसको हम मस्त तड़का मार के खा गए. खाया हमने शाम को, बहुत मजा आया. सही. अरे यार पता है, मतलब पायरेसी तो है, आई थिंक अफ्रीका में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अभी किडनैपिंग की, क्योंकि मैंने काफी सारे वो देखे हैं, जैसे ऑफर लेटर आता है ना लोगों को, तो उसमें लिखा होता है कि कंपनी विल पे फॉर योर रैंसम ओनली ट्वाइस. 2 बार तो होना ही है. बस 2 बार करेंगे, और तुम उसके बाद वापस आओ. रोहित भाई, आपने ऑब्वियसली काफी टेंस सिनेरियोस भी देखे हैं दिन में भी. अगर if I look at a day in the life of a submariner, it has to be a very very tense environment as well. How do you people unwind? How do you mentally relax to be recharged for the next tour or the next mission? See, harbor, after you come to harbor, normally people give time to their family. So सब अपने family time spend करते हैं. We normally keep small timings on board. सुबह morning से लेकर afternoon तक का time रखते हैं on board रहने का. But when we are at sea, that is the most important part, कि अपने आपको कैसे कंट्रोल रखना उस सिचुएशन में. Because
सिचुएशन इज लाइक दैट, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, कभी भी आपको ऑपरेट करना पड़ सकता है, डे में भी आप काम कर रहे हो, रात में भी आप काम कर रहे हो. So then we keep on doing activities for sailors and officers on board, like we do cooking competitions करते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं within compartments, maybe some drama by somebody, singing competition, something like that. कुछ ना कुछ एक्टिविटीज चलता रहता है. मूवी वॉचिंग टुगेदर, कोई एक ऐसा भी है कि कई मूवीज हमने बहुत, जैसे वॉर मूवीज हैं या फिर कोई कॉमेडी मूवी है, तो जैसे 3 इडियट देख ली 25 बार तो डायलॉग भी याद हो गए 3 इडियट के. वैसे मूवी कंटिन्यूसली, और सब वहां पे क्या है कि सेलर्स ऑफिसर्स सारे क्लोज रहते हैं. अदरवाइज इफ यू सी ऑन शिप्स में इंटरेक्शन बिटवीन सेलर्स एंड ऑफिसर्स इज स्लाइटली लेस, बिकॉज ऑफिसर्स का परसेंटेज खुद इतना ज्यादा होता है. And they are, all officers are really busy on ship because it's a big platform, so you have to keep doing various jobs. Jabki submarine mein your profile is very much defined, that you have to do this job, and after that you have to take rest also. That rest is very important, because if you will not take rest, you will not be able to operate. So जैसे हमारे कई बारी बहुत hostile situation होती थी, तो we used to operate like 2 hours sleep, 2 hours operation, 2 hours sleep, 2 hours operation. So we used to, like, because 24/7 you have to be there. तो उसमें आप कंटिन्यूसली काम नहीं कर सकते. तो 2 hours में हम लोग वॉच करते थे, 2 घंटे सो रहा है, रेस्ट कर रहा है, फिर 2 घंटे काम कर रहा है. ऐसे सबमरीन में तो रेस्ट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, अगर तुमने नहीं लिया तो तुम्हारी टर्न चली गई, फिर दूसरे के रेस्ट लेने का टाइम आ गया. कोई 5 बंक बेड्स हैं. बंक तो ऐसी चीज होती थी, आपको एक बार वो बंक मिल गया तो बस उसके बाद आप छोड़ो मत उसको, भाई सो जाओ. अच्छा, हम लोग जब एयरफोर्स की बात कर रहे थे गरिमा के साथ, शी वाज टॉकिंग अबाउट द मूवी गुंजन सक्सेना. अभी नेवी के ऊपर सिर्फ एक मूवी आज तक मुझे जो पता है बनी है, दैट इज गाजी अटैक. हैव यू वॉच्ड दैट मूवी? या गाजी अटैक आई वॉच्ड. हाउ एक्यूरेट वाज इट? एंड so गाजी अटैक आई डाइड लाफिंग बिकॉज़ उसमें जैसा दिखाया है वैसा कुछ नहीं होता है. सही अमेजिंग दिखा दिया उसमें. तो मैंने कहा ये तो ऑफिसर ही मतलब अलग लेवल के हैं, ये ऐसा कर सकते हैं, हम तो कर ही नहीं सकते ऐसा. वो टॉर्पेडो ट्यूब से भी बाहर निकल सकते हैं, हम तो वो निकल ही सकते टॉर्पेडो से बाहर. तो उसमें ऐसे सिनेरियोस दिखा दिए कि मैं तो देख के हैरान हो गया. मैंने कहा ये तो नए तरीके के सबमरीन थे. सी द काइंड ऑफ स्टोरी व्हाट दे हैव शोन, मे बी अप टू सम पॉइंट यू कैन से कि रिलेटेबल है, बट जो एनवायरनमेंट दिखाया सबमरीन में वैसा नहीं होता है. सबमरीन में एनवायरनमेंट इट्स टोटली डिफरेंट. एंड मूवीज में थोड़ा सा एग्जैजरेट करके उनको दिखाना होता है. वी आर नोबडी इज सुपरमैन. इवन पीपल हु आर इन आर्म्ड फोर्सेस, दे आर नॉट सुपरमैन, दे आर ह्यूमन बीइंग्स. एंड वी एज अ प्लेटफॉर्म आल्सो वी हैव लिमिटेशन. प्लेटफॉर्म का बहुत लिमिटेशंस होता है, एंड यू हैव टू ऑपरेट अकॉर्डिंग टू प्लेटफॉर्म. उसमें आप कुछ भी काम ऐसे अननेसेसरी नहीं कर सकते हो. देयर इज फॉर एवरीथिंग देयर इज अ ड्रिल. यू कैन नॉट गो आउट ऑफ सबमरीन वंस यू आर इनसाइड. में तो मूवी में ऐसा, और मैं के लिए तो बहुत कंसिस्टेंट वो रहा है, मतलब ओपिनियन ना. गरिमा का फॉर मतलब एयरफोर्स में उसका भी यही ओपिनियन. मनीष सर का तो बिल्कुल ही, उनके इतने कलरफुल वर्ड्स थे कि भाई क्या दिखाते हैं, क्या भारत माता की जय और झंडा लेके चले जाओ. भाई पहले मेरी लाइफ इंपॉर्टेंट है, फिर मेरे साथ वालों की लाइफ इंपॉर्टेंट है. एवरीवन जब कोई सिचुएशन आता है, कोई भी सिचुएशन आता है, मैंने देखा लोगों के अंदर सबसे पहली चीज होती है कि इस सिचुएशन में हाउ टू सेव माई सेल्फ. एंड ऐसा नहीं है कि but people in armed forces are trained ऐसे सिचुएशन के लिए, so they act according to what they have been trained. अगर मेरे को पता है कि ये फायर हुआ है इधर, मेरे को इधर रहना है, and this is my job, I have to complete only that job. ऐसा नहीं है कि मैं जाके फायर बुझाने लग जाऊंगा. जिसका फायर बुझाने का काम है वही जाएगा फायर बुझाने. जिसको अगर पहले पार्टी फायर नहीं बुझा पाए तो सेकंड पार्टी जो जाएगी वो भी पहले से डिसाइडेड है. तो इट इज स्टेप वाइज प्रोसीजर, एंड जब कोई कुछ नहीं कर पाएगा तो वी हैव अ मेजर फायर फाइटिंग सिस्टम, वो ऑपरेट करना पड़ेगा. तो इट इज ऑल ड्रिल. And you have to follow the drill. ऐसा नहीं है कि आप उसमें कुछ भी डेविएशन लेके आ सकते हो. There is no deviation in that. रोहित भाई, आपके ही टेन्योर में वो सिंधु रक्षक का भी इंसिडेंट हुआ था. Can you tell us a little more about what happened? If you watched it closely, if you have a first person's exact thing I will also not be able to share, but I can share you that accident which happened is that happened because of a blast. Before we step into that, for those who don't know, what is the Sindhu Rakshak incident that happened? So there was a blast in a submarine. ये blast हुआ था on 14th August evening, and it was a blast which happened inside submarine में. कुछ काम चल रहा था. Submarine was about to go to sortie, and sortie में जाने से पहले उसके अंदर एक blast हुआ early morning, and उस blast में काफी लोगों की death हुई. And it was a very major incident in submarine arm. बहुत ही इसको हम कहते हैं, it was not a very thing which nobody want that thing to happen. So it was a very scenario where nobody wanted, किसी को पता नहीं था कि ऐसे सिनेरियो में कैसे क्या करना है, but still people
were there and लोग वहाँ पहुंचे वैसे सिनेरियो में भी. And submarine blast is, you cannot imagine that what kind of blast it was. It was seen from the other side of the island. इतना बड़ा blast था वो. So other side of the island से दिख रहा था. And the nearby buildings थे उनके सब glasses टूट गए थे. The blast was so high. And but that entire situation was handled very correctly by Indian Navy. And because in scenarios control करना बहुत मुश्किल होता है. So that incident I was there only because I was on duty on that day. Okay. So it all happened in front of me, but that was taken care of really well. But ऐसे incidents होते हैं which nobody wants कि ऐसे incident हो, but then again it's part of your job. You are operating in an environment which is very dangerous. और इस dangerous environment में operate करने के लिए आप कि क्या pros हैं क्या cons हैं, ऐसा भी हो सकता है. तो आप वैसे कह रहे थे you were on duty that day. I'm pretty sure there must have been other instances as well जहाँ पे you have seen similar incidences where you have seen loss of life. How difficult is it to keep yourself mentally out of it and not let it affect yourself adversely, mentally, personally down the line? It is actually very difficult when you see someone losing life in front of you. It is actually very difficult to cope up with that environment. And then you are in armed forces. You have to behave in certain manner. अगले दिन वापस जाना है वहीं पे. These situations can happen. Yeah. हाँ, वापस अगले दिन वही जाना है. आपको पता है कि इन सिचुएशंस में आपको काम करना सिखाया गया है. अगर कोई एक्सीडेंट होता है, then also you know that what can happen. And आपको नेक्स्ट डे सेम एनवायरनमेंट को ऑपरेट करना. इट इज वेरी डिफिकल्ट. बहुत डिफिकल्ट होता है अपने आप को उस सिचुएशन में कंट्रोल करके रखना, बिकॉज एज अ ह्यूमन यू स्टार्ट फीलिंग बैड अबाउट द सिचुएशन दैट समथिंग लाइक दिस हैपेंड व्हिच नोबडी वांटेड, बट अब हो गया है तो उसको ढंग से डील भी करना है. सो जिसका जो वही अगेन इट्स समथिंग हैपेंड, देन क्लियर सेट ऑफ गाइडलाइंस will be issued, वो आपको मिलेगा, then you operate according to what you have been told to. मतलब काफी mental strength चाहिए मतलब इसके लिए काफी. And in fact Navy का जो environment है that itself is very dangerous because you are again operating against, it is just like when you are flying, small mistake can be very big. Same is with submarine or same is with ships. These are operating against the any kind of against the environment, against the nature. Any small thing which will happen can destroy the entire ship, and it is life and death. So there your role is very important. Whatever job has been assigned to you, you have to do it very carefully, because if you skip anything, if you skip any drill, if you skip any job, and if you are not concentrating on what you're doing, your work, and it's actually directly proportional to someone's life. Yeah, a number of lives are riding on your smallest. Yes, absolutely. So like we used to do watch on a submarine at sea when people were sleeping, and we were in control room. I was on, it's just like cockpit kind of thing where you take the submarine down and up. So it's a cockpit kind of area only, and you are the only one who is in charge, and with you only 4 or 5 sailors are there who are operating at that time, and rest everyone is sleeping. So that is very crucial time, because people are sleeping and they are sleeping in peace because they know that someone is at watch and he will take care of everything on each other. So आप जब everyday basis पे ऐसी responsibilities के साथ deal करते हो, ऐसी problems के साथ deal करते हो, after you have stepped out of your uniform, after you have stepped out of your armed forces, जो daily life वाली problems है वो तो बहुत ही minuscule लगती होंगी ना, कि मतलब आज चलो लाइट नहीं आ रही है. डेली लाइफ वाली प्रॉब्लम ज्यादा खतरनाक होती है. डेली लाइफ वाली प्रॉब्लम ज्यादा खतरनाक होती है, एंड यू हैव बीन ट्रेन्ड फॉर नेवल एनवायरनमेंट, तो वो नेवल एनवायरनमेंट में ऑपरेट करना इज वेरी इजी. नेवल एनवायरनमेंट में बाकी लोग भी सपोर्ट कर रहे होते हैं तुम्हें ना. हाँ, करेक्ट. या फैमिली में तो आपको सबको संभालना है, सुना रहे होते हैं. फैमिली लाइफ इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट. ऐसा हुआ नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ. हाँ, ऑफ कोर्स यू आर द ओनली एक्सेप्शन. Even I tell you an incident when this demonetization happened. But demonetization time पे I was at sea. Nice. हाँ, हम सी में थे and we are near गुजरात कोस्ट. तो गुजरात कोस्ट से पाकिस्तानी वो पकड़ता है, पाकिस्तानी नेटवर्क पकड़ता है, ठीक है, रेडियो नेटवर्क पकड़ता है गुजरात कोस्ट से. तो पाकिस्तानी जो था वो उर्दू में बोलता है, और गुजरात में अगर नेटवर्क आप पकड़ो तो वो गुजराती में बोल रहे हैं. पाकिस्तान वाला अपने को ज्यादा समझ में आएगा. तो हम सुन रहे थे, ट्रांसमीटर में सुन रहे थे, तो देन उसमें न्यूज बताया कि डिमोनेटाइजेशन हो गया है. अभी हम सबके पास वो पुराने नोट 500 के, कल तो यार गुजरात में एंट्री है तो खाने को भी नहीं मिलेगा अपने को, क्योंकि बाहर कहीं जाएंगे नोट तो चलेगी नहीं. तो बहुत टेंशन हुई थी भाई. अब नेक्स्ट डे वी एंटर्ड गुजरात. हम जब एंटर किए
तो वहां जब पहुंचे तो हमारे पास जो नोट थे वो किसी काम के नहीं थे और सबके पास इंडियन करेंसी वही पुराना वाला था। तो हमारे जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, वी आर नॉट देयर इन हार्बर ऑल्सो। हमको भी वो न्यूज भी हमको हमारे पड़ोसी भाइयों से मिली, नहीं तो हमारे अपने भाइयों ने तो हमें वो भी नहीं बताया था कि डिमोनेटाइजेशन हो गया दोस्तों, वापस आ जाओ। बहुत सही यार। To continue the lighter side, funnier instances in your tenure जिसको आप याद करके you relive the old days and अभी भी मजा आता है, फील आती है। In addition to that, कि डस्टबिन में से पापा ने वो निकाल के एडमिशन करा दिया था। मेरे तो बहुत फनी इंसिडेंट है, पर एक मेरा जो दिल के अजीज है फनी इंसिडेंट वो है, हम वी वर सेलिंग नियर बाय सबमरीन में, वी वर सेलिंग नियर बाय कारवार एंड गोवा। हम सेलिंग, हमारा सबमरीन का सेलिंग हो रहा था कारवार एंड गोवा के पास। एंड जब कारवार और गोवा के पास सेलिंग होता है तो वी गो टू कारवार। कारवार में आप ओटीआर करते हैं, बेसिकली ऑपरेशन टर्न अराउंड होता है, जिसमें आपको जो भी चीजें लेनी है, चूलिंग करनी है, सामान जो लेना है, वो आप लेने के लिए हार्बर में जाते हो। तो वो 1 या 2 दिन का ही होता है हार्डली। तो हमारे कुछ अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर्स थे, उनको रिपोर्ट करना था सबमरीन में, और हमने इनको मुंबई से कारवार बुला लिया कि आप कारवार में आके रिपोर्टिंग करिए। तो मैंने अपने कमांडिंग ऑफिसर को बोला, मैंने कहा सर एक प्रैंक खेला जाए इनके साथ। तो कमांडिंग ऑफिसर हमारे बहुत ही सपोर्टिंग थे, बहुत अच्छे थे। उन्होंने बोला तुम्हें क्या करना है? मैंने कहा सर मैं एक ऐसा प्रैंक खेलूंगा कि 24 घंटे ये रोएंगे जब ऑनबोर्ड आएंगे। तो जब वो ऑनबोर्ड आए तो गैंगवे से वो सबमरीन में चढ़ रखे, आई वाज डूइंग वॉच। प्लानिंग ऐसा था कि जब ये एंटर करेंगे तो मैं ब्रिज पे होऊंगा। तो मैं ब्रिज पे था, तो मैंने उनको नीचे रुकवाया, मैंने कहा तुम सब नीचे रुको, तुम्हारा ब्रीफिंग होगा पहले, मैं ब्रीफिंग करूंगा, उसके बाद ही तुम एंटर करोगे अंदर। तो उनको लगा पता नहीं क्या हो गया, उनको वहां पे खड़ा रखा 2-3 घंटे धूप में। नाइस। उसके बाद उनके पास गया मैंने उनको बोला देखो यहाँ पे इस सबमरीन में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, और वो रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ ही आप मुंबई पहुंचोगे, आपको वो फॉलो करना कंटिन्यूसली एट सी। तो अभी उनको समझा कुछ तो होने वाला है अजीब सा हमारे साथ। तो मैं उनको सबसे पहले लेके आया अंदर, सबमरीन के अंदर लेके गया। मैंने कहा देखो यहाँ पे आपके सोने के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है, देखो हमारे पास जगह ही नहीं है सोने की। ये 5 बंक बेड है और वो 5 सीनियर्स के लिए है। हाँ वो 5 सीनियर्स के हैं। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा तुम्हारे लिए मैंने कोल्ड रूम हमारा एक 2 कंपार्टमेंट नीचे कोल्ड रूम होता है, जहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस और -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, जिसमें हम सामान रखते हैं, अपना फ्रीजिंग आइटम वगैरह रखते हैं। उसके बाहर एक एरिया बनाया हुआ है, वहां पे मैं तुम्हारा बंक बेड लगाऊंगा, एंड 5 में से एक बंदा तुम अपने आप डिसाइड कर लो जिसको जब सोना है, ये वॉच के हिसाब से। तो बाकी 5 बंदे काम करेंगे, एक बंदा जाके सो सकता है वहां पे, एंड राउंड द क्लॉक मुंबई जब तक हम नहीं पहुंचेंगे यही तुमको फॉलो करना है। खाना खाने के लिए कोई भी वार्डरूम में एंटर नहीं करेगा, तुमको खाना खाना पड़ेगा खड़े होके किचन में, और एक एक करके ऐसे आपको खाना खाना है। तो अभी जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंसान की यही होती है, खाना और रहना, ये दोनों उनका खत्म हो गया। उनके मुंह इतने छोटे हो गए, कहते हैं ये कहाँ पे आ गए हैं, समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद मैंने बोला अब फटाफट यूनिफॉर्म में चेंज करो, और इसके बाद तुम्हारा जो है तुमको मशीनरी रूम में सबसे लास्ट कंपार्टमेंट से स्टार्ट करना है, डायग्राम बनाना सेलिंग से पहले। पूरा डायग्राम, जब तक हम सेलिंग नहीं करेंगे पूरा डायग्राम बन के मेरे पास आ जाना तुम। तो उनको लगा ये तो हो गया गेम, और फिर सारे ऑफिसर सेलर कोई बात नहीं कर रहा है, सबको मना कर दिया गया था पहले, कोई बात नहीं करेगा इनसे। तो जो भी कुछ पूछ रहे हैं पीछे जाओ, ये करो, उनका डायग्राम दिखाओ, तुम डायग्राम कहाँ है। तो उनको लगा भाई ये तो हम तो टोटल रॉन्ग जगह पे आ गए हैं ये वो, और देन दे वर टोटली वरीड, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, ऐसे उदास सैड मुंह लटका के घूम रहे हैं। और ये हमने कंटिन्यू रखा। जब हम सेलिंग निकल गए उसके बाद वो उनको सबको कमांडिंग ऑफिसर ने बुलाया। एक हमारा कंट्रोल एंड इंफॉर्मेशन सेंटर होता है, वहां पे कमांडिंग ऑफिसर ने उनको बुलाया, और सब सेलर आ गए, और सब बहुत सीरियसली उनकी तरफ देखने लगे। तो उनको लगा आपको पता नहीं रैगिंग लेने वाले सबमरीन से बाहर ही फेंकने वाले क्या यहाँ पे। दे वर ऑल कमीशन्ड ऑफिसर, ठीक है, लेफ्टिनेंट और सब लेफ्टिनेंट रैंक के लोग थे। तो उनको लगा कहाँ पे आ गए, ये क्या हो रहा है। तो ट्रेनिंग एकेडमी से भी ज्यादा बुरी आदत हो गई हमारी। उसके बाद पूरा शिप्स कंपनी और कमांडिंग ऑफिसर ठागे मार के हम खूब हंसते रहे, हम 15 मिनट हंसते रहे, उनको देखते रहे, हंसते रहे। फिर उन्होंने बोला ये इनका प्लान था हमारे साथ ये गेम करने का। कमांडिंग ऑफिसर ने बोला कि वेलकम ऑन बोर्ड, तुम सब आराम से, तुम्हारा रहने का सब अरेंजमेंट हो गया है, स्लीपिंग प्लेस तुम्हारी पीछे है, सबको दिखाया उनको, इतने खुश हुए। एंड देन टुडे आल्सो व्हेन दे मीट मी, वो कहते हैं सर वो इनसे देखो 24 घंटे हमको याद है लाइफ में। लेकिन इसको आर्म्ड फोर्सेस में रैगिंग नहीं बोलेंगे, इसको रगड़ा बोलते हैं। हाँ, इसको रगड़ा बोलेंगे, रैगिंग वर्ड तो हम यूज ही नहीं करते। Rohit bhai, final question from my side. Over the 10 years that you served Indian Navy, what was your proudest moment? When you see that people who are living along with you, they trust that
you are there on watch. Watch is basically when you are there at sea and you are the overall in charge. And you are the one who is doing watch. आप अपनी watch पे हो and people see कि जब आप watch पे होते हो तब हम सुकून से सो सकते हैं. When this kind of thing you get to hear from people, and even my commanding officer said this thing to me, that I am very confident when you are at watch. So then you feel very proud that I have done something where other people are also affected and they feel that that this person जब ये है तो हम safe हैं. Brilliant. Rohit bhai, thank you so much for taking so much time out. It was absolutely enthralling speaking to you. मतलब मजा आ गया यार बात करते हुए. नहीं मजा, मुझे एक्चुअली मजा आया आप लोग. एक्चुअली मैं कुछ बता पाया. आई होप मैंने कुछ चीजें ऐसी बताई जो नॉर्मली पीपल डोंट नो अबाउट नेवी की. ऐसी चीजें भी होती हैं नॉर्मली पीपल नो दैट हाँ वहाँ पे हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, लोग ऐसे ऑपरेट करते हैं, एक साथ बैठते हैं, गोली मारते हैं, वो सब चलता रहता है. बट देयर आर दीस सिचुएशंस आल्सो वेयर पीपल इंटरैक्ट, एक दूसरे से बात करते हैं, अच्छा टाइम भी स्पेंड करते हैं. एंड देन देयर आर टाइम्स वेयर कंडीशंस आर वेरी डिफरेंट एडवर्स, लेकिन फिर भी आप एक साथ मिलकर काम करते हो और ऐसे प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो जहाँ पे एनवायरमेंट सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप खुशी खुशी काम कर रहे हो. इतनी लंबी सॉर्टीज में जा रहे हो, फैमिली से इतना दूर हो, कभी कॉन्टेक्ट नहीं हो, पता भी नहीं चल रहा है कि फैमिली में क्या हो रहा है. एंड आई हैव सीन हैपनिंग व्हिच लोगों के साथ जब हुए, इनको पता भी नहीं है कि हमारी फैमिली में ऐसा कुछ इंसिडेंट हो चुका है, एंड पीपल आर नॉट अवेयर ऑल्सो. तो देन ऑल्सो पीपल आर सो काम एंड कंपोज इनसाइड ऑन प्लेटफॉर्म और सबमरीन और अ शिप. तो वो सब आपको बाहर नहीं देखने मिलेगा. So this is what we don't realize. This is such a massive sacrifice. जो आप अभी बता रहे थे, पता भी नहीं चलता घर पे किसी की पीछे डेथ हो गई है या कुछ फैमिली में प्रॉब्लम है. You're not even you're absolutely oblivious towards it, and such a massive sacrifice on the part of the people who are there for our safety, for citizens or civilians like us can sleep peacefully at night. And thank you so much for your 10 years of serving the country, Rohit bhai. Absolute pleasure speaking to you. And thanks for such a frank conversation. Thank you so much for this opportunity, providing this opportunity. ऐसा नहीं है कि आर्म फोर्सेस में जाने के लिए आपको कुछ बहुत स्पेशल होना है. इट इज जस्ट योर डेडिकेशन दैट यू रियली वांट टू बी इन आर्म फोर्सेस. मेरे कोई बैकग्राउंड में दूर दूर तक आर्म फोर्सेस में नहीं था. मेरा कोई पता भी नहीं मुझे आर्म फोर्स में, ये भी नहीं पता था कि क्या होता है. मुझे ये भी नहीं पता था मैं किस एंट्री के लिए जा रहा हूँ. मुझे ये नहीं पता था मुझे कौन सी रैंक मिलेगी. आई अप्लाइड फॉर एवरीथिंग. मैंने सेलर एंट्री के लिए भी अप्लाई किया हुआ था, बट मेरा वहां पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ, जैसा मेरा कहीं भी सिलेक्शन नहीं होता था. तो इट इज जस्ट अ कॉमन मैन जो जाता है आर्म फोर्सेस में, एंड देन वहां पे जाके आपको जो एनवायरमेंट मिलता है उससे आप टोटली डिफरेंट हो जाते हो. आई गिव दिस टोटल क्रेडिट टू इंडियन नेवी दैट जितना भी मेरा ग्रूमिंग हुआ है, जो भी मेरी सोच है और जो मैं आज हूँ, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ इंडियन नेवी. That is so wholesome to hear.